सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घ दृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर योर फ्रेंडशिप। President Biden, First Lady Dr. Jill Biden, distinguished guests, friends from the Indian American community filled with energy and excitement, a very good morning to all of you. First of all, I would like to express my gratitude to President Biden for his warm welcome and his far-sighted speech. Thank you, President Biden, for your friendship. फ्रेंड्स, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Friends, this grand welcome ceremony at the White House today is an honor and pride for 1.4 billion people of India. This is also an honor for more than 4 million people of Indian origin living in the US. For this honor, I express my heartfelt gratitude to President Biden and Dr. Jill Biden. फ्रेंड्स, करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। Friends, about 3 decades ago, I came on a visit to America as a common man. At that time, I had seen the White House from outside. After becoming the Prime Minister, I have come here many times, but today, for the first time, the doors of the White House have been opened for the Indian American community in such large numbers. भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। The people of the Indian community are enhancing India's glory in the US through their talent, hard work, and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank President Biden and Dr. Jill Biden for the honor you've been given today. I think I can't thank him enough for this. फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान, उसके पहले 3 शब्द और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। The societies and institutions of both India and the US are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the following three words: we, the people, as President Biden just mentioned. Both of our countries take pride in their diversity. Both of us believe in the fundamental principle of in the interest of all, for the welfare of all. पोस्ट कोविड काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। In the post-COVID era, the world order is taking a new shape. In this time period, the friendship between India and the US will be instrumental in enhancing the strength of the whole world. The two countries are committed to work together for the global good and for global peace, stability, and prosperity. Our strong strategic partnership is a clear proof of the power of democracy. फ्रेंड्स, अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति बाइडेन और मैं भारत अमेरिका संबंधों और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। आज दोपहर को मुझे यूएस कांग्रेस को एक बार फिर से संबोधित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। Friends, in a short while from now, President Biden and I will discuss India-US relations, various regional and global issues. I'm sure that, as always, our conversation today will be very positive and useful. This afternoon, I will also have an opportunity to address the US Congress for a second time. I am deeply grateful for this honor. मैं यही कामना करता हूं और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप्स हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। राष्ट्रपति बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। गॉड ब्लेस अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद। I wish for, and the 1.4 billion people of India wish with me, for India's tricolor and America's stars and stripes to always keep flying higher and higher. President Biden, Dr. Jill Biden, once again, I thank you for your kind invitation, for your warm welcome and hospitality, also on behalf of 1.4 billion people of India. Jai Hind, God bless America. Thank you very much. Are you going and meeting the people? तो ये तस्वीरें देख करके किसी का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन इस वक्त व्हाइट हाउस में, उन्हें रिसेप्शन दिया गया, ग्रैंड रिसेप्शन दिया गया।
सेरेमोनियल रिसेप्शन दिया गया। फिर उसके बाद जो बाइडेन ने सबसे पहले उनका स्वागत किया। ये देखिए जो बाइडेन, जिल बाइडेन, इस वक्त रेड कार्पेट, बाकायदा रेड कार्पेट डाल करके उनका स्वागत किया गया। बैंड देखिए इस वक्त अपनी स्वर धुनी बजा रहा है और जो बाइडेन, जिल बाइडेन मौजूद हैं, उन्हें अपने साथ ले जाते हुए अभी कुछ ही देर में यहाँ पर भारत अमेरिका संबंधों पर बायलैटरल टॉक शुरू होंगी। लेकिन उससे पहले एक स्टेट गेस्ट का क्या वेलकम होता है, ये देखिए बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। आपने देखा होगा इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी का यूएस टूर, लेकिन एक स्टेट गेस्ट जो है वो बिल्कुल ही अलग ही तरीके का ट्रीटमेंट होता है, एक अलग ही तरीके से जो है उसे रिसीव किया जाता है। व्हाइट हाउस जो है वो उसे अपना गेस्ट मानता है। व्हाइट हाउस सब जो जितने भी सेरेमोनियल प्रोटोकॉल्स होते हैं वो उसका पालन करता है। खुद उसके होस्ट बन जाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बन जाते हैं उसके होस्ट, और वही इस बार भी देखने को मिला। इंतज़ार कर रहे थे देखिए जो बाइडेन वहाँ पर खड़े होकर के, और अमेरिका कमला हैरिस मौजूद थी, अमेरिका के और जो बाकी कांग्रेसमैन वो वहाँ पर मौजूद थे जो खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे थे। और इस बीच ये अंदर जा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो बाइडेन, जिल बाइडेन। अभी कुछ ही देर में उस वार्ता का जब उन्होंने कहा कि उसका जिक्र किया कि आज दोपहर को मैंने यूएस कांग्रेस को भी संबोधित करना है, वो भी बेहद गर्व का क्षण होने वाला है। इससे पहले मैं व्हाइट हाउस तो आया हूँ, व्हाइट हाउस मैंने देखा है, लेकिन इससे पहले व्हाइट हाउस में इतने सारे भारतीयों का होना आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मैं जिस वक्त स्टूडेंट लाइफ में था, जिस वक्त उस वक्त मैंने व्हाइट हाउस में आया था, विजिट किया था, अर्ली डेज वो याद कर रहे थे। लेकिन अब व्हाइट हाउस बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय समुदाय मौजूद हैं, यही भारत की ताकत है, ये जय हिंद की ताकत है। ये देखिए अब उस बालकनी पर आ गए हैं, स्टेट गेस्ट उस बालकनी पर आ जाता है। यहाँ से इस वक्त ये म्यूजिक और ये रोड सुनने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त अंदर जाते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी और जिल बाइडेन, तो जो रिसेप्शन था इस वक्त बेहतरीन रिसेप्शन उन्हें दिया गया। और इस बेहतरीन रिसेप्शन के बाद अंदर चले गए खुद प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति, और कुछ देर में द्विपक्षीय वार्ता भी शुरू होगी। दोनों देशों के आपसी परस्पर संबंधों को लेकर के जो बेहद मजबूत, आज से पहले इतने मजबूत नहीं दिखाई दिए हैं जो कि इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए सबसे पहले जो है जो बाइडेन ने जो है वो रिसेप्शन दिया, जो बाइडेन ने वेलकम किया शानदार तरीके से। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे वेलकमिंग स्पीच को थैंक्स किया। राजलक्ष्मी जोशी हैं हमारे साथ जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। रवि गोडसे जो कि विदेशी मामलों के जानकार है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक गुप्ता है चेयरमैन इंडो अमेरिकी कॉन्क्लेव के। विवेक गुप्ता, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, ये कितना रेयर ओकेजन है ये जो जिस तरह की तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं, जो बाइडेन इंतजार करते हुए, कमला हैरिस, तमाम और रिप्रेजेंटेटिव्स वहां खड़े हुए कि पीएम का इंतजार करते हुए,
इतना डीप जो है एक तरीके से जो है वार्म हॉस्पिटैलिटी और वेलकम और होस्ट किया है खुद जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने, और पूरा इस वक्त अमेरिकी बैंड, व्हाइट हाउस बैंड और सेरेमोनियल वेलकम, कैसे देखते हैं आप इसे? सॉरी मैं पहले भी बताया था मैंने कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, लेकिन 2014 की जो विजिट थी, दैट वाज द फर्स्ट विजिट आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर. I was part of that and I attended most of the programs including Madison Square and the dinner which was then hosted for Indian community. तो उस समय की गर्मजोशी मैं पहले देख चुका हूं, लेकिन एज ए स्टेट गेस्ट इट्सेल्फ इज अ बिग ऑनर. एंड जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑनर मेरा नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए है. जब स्टेट गेस्ट होते हैं, जैसा कि आप लोग पहले बता चुके हैं टेलीविजन पे, तो ऑल नॉट ओनली द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज इनवाइटिंग, और उसके अलावा कई चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली औपचारिक रूप से करी जाती हैं. तो वी आर वेरी मच डिलाइटेड टू सी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बीइंग एस्कॉर्टेड, तो एक्चुअली एन एस्कॉर्ट बाय नो लेस देन द प्रेसिडेंट एंड मैडम प्रेसिडेंट, द फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए, and I would say they are the single most important person of the world. तो ये देख बड़ी खुशी हुई. दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जो मैं देख रहा हूं आपके साथ, कि जिस गर्म जोशी के साथ, जिस एनर्जी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ भी बोले, तो कि एक कर चुके हैं योगा पे या स्टडी कर चुके हैं, तो उनकी अनलिमिटेड एनर्जी है. उसके लिए मैं फिर से उनको सलाम करना चाहता हूँ. वी ऑल आर वेरी एनर्जेटिक. आई ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड. आई हैव नॉट टेकन लीव फॉर लास्ट 25 years अपोलो में रह के, लेकिन उनकी एनर्जी का कोई जवाब नहीं है. दूसरी बात आपने मुझे बोलने का मौका दिया है. देखिए, जो भी विजिट होती है उसमें क्या चीज, तीन महत्वपूर्ण चीजें होती हैं. वो होती है उस देश की सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड इकोनॉमी. तो इस तीनों को जब देखते हैं, जैसा कि आप लोग बता भी चुके हैं और हम लोग पढ़ भी रहे हैं, इन तीनों को देखते हुए अगर हम देखते हैं तो भारत की ऊंचाई दिन पर दिन बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी. सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी ऑफ द. हमारे अनफॉर्चुनेटली देखिए, हम तो वी आर पीसफुल कंट्री. इंडिया इज द ओनली कंट्री व्हिच हैज नॉट इन्वेडेड एनी कंट्री इन द पास्ट. हम लोग अनफॉर्चुनेटली काफी सालों तक गुलाम रहे. 1947 और 50 में हम लोग जब आजाद हुए, उसके बाद हम जितना डेवलपमेंट कर चुके हैं और काफी कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवा साल चल रहा है, हम और करेंगे. तो मैं चाहूंगा कि अपने प्रधानमंत्री जब मिस्टर बाइडेन के साथ बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए पीस ऑफ द वर्ल्ड. ऑफ कोर्स पीस ऑफ अपनी कंट्री के साथ साथ वर्ल्ड की पीस. एंड आई पर्सनली फील in future our honorable prime minister Mr. Narendra Modi जी will be nominated for the Nobel Peace Prize. ये मेरी सोच है या थॉट प्रोसेस है, इंट्यूशन है. सबसे इंपॉर्टेंट बात और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए हमारा देश अपनी सिक्योरिटी हर आदमी चाहता है, लेकिन जो अपनी पृथ्वी है, अर्थ है, क्लाइमेट क्राइसिस वन ऑफ द डिस्कशन, उस पे अमेरिका उतना सीरियसली नहीं ले रहा है. डोनाल्ड ट्रंप जब उस समय थे प्रेसिडेंट, उन्होंने तो अपने को खींच लिया था वापस, दैट विल नॉट पे एनीथिंग फॉर दैट क्लाइमेट क्राइसिस में जो दे रहे थे. उनको लग रहा था कि बाकी देश को करना चाहिए एंड ही वाज नॉट कंफर्टेबल. ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. देखिए, हम लोग ने ड्रोन्स खरीद लिए $3 बिलियन के, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए है. देखिए, अगर हमको विश्व को बचाना है, अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाना है, एज ए डॉक्टर पर्सनली आई फील कि जिस हिसाब से हम लोग इस तरह के सुनामीज आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये चेंज ऑफ क्लाइमेट है, इसके लिए अमेरिका को बहुत बड़ी पहल करनी पड़ेगी. इस समय अमेरिका छोटी छोटी चीजें देख रहा है, रशिया, यूक्रेन, ये सब वॉर देखना है. ठीक है, मैं सर एक सेकंड आपको रोकूंगा क्योंकि वहां से कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, वो पहले सुन लेते हैं. It was a grand welcome, real very well. This is the first state visit of Prime Minister Modi. Great honor for our country. Hi, my name is Mahesh. Yeah, it's a great honor for India and as well as US. It was a great speech by Biden and Modi. Thank you. Anuj. Event was great. I am from Gujarat, so he was like chief minister of my state for half of my life. But I never imagined that first time I would see him would be in White House. So that was great. I had to say something. जी ने जो एक नई पहचान बनाई है, उस पहचान को आज विश्व स्वीकार कर रहा है. आज उनकी मॉरल अथॉरिटी को विश्व स्वीकार कर रहा है. ये परिलक्षित होता है जिस तरह से प्रेसिडेंट बाइडेन, जो कि विश्व के सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट है, वो आज
मोदी जी को अपने साथ इक्वल पार्टनर की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं। अमेरिका भारत को एक इक्वल पार्टनर की तरह एक्सेप्ट कर रहा है। तो सर, ये प्रधानमंत्री ने वहाँ के जो कंपनियों का सीईओ है या मालिक है उनसे मिला और भारत में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा इसको लेकर के भी मीटिंग की, उसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व में जो अनसर्टेनिटी है, आर्थिक जो एक बहुत बड़ा जिस तरह का एक तूफान चल रहा है, उस तूफान में हिंदुस्तान एक स्थायी, स्टेबल और कंसिस्टेंट 6 to 8% ग्रोथ वाला राष्ट्र बन के उभरा है। आज हम पिछले 9 वर्षों में 10वें से 5वें स्थान पे पहुंचे। आगामी 3, साढ़े 3, 4 वर्षों के अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अर्थशास्त्री बोलते हैं। इन सब को देखते हुए आज दुनिया का हर बड़ा इकोनॉमिक हो या टेक्निकल पावर हो, वो हिंदुस्तान में अपनी प्रेजेंस स्थापित करना चाहता है। हिंदुस्तान ने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, यहाँ के टैलेंट के लिए, यहाँ हर तरीके से जो स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके कारण आना चाहता है। इस विजिट में जो मीटिंग्स हुई है, जो हो रही है, उससे भारत को बहुत लाभ होगा। एक वहाँ डिनर का व्यवस्था की गई है, लेकिन वहाँ जिस तरह से फेमस हस्तियाँ है वो सब भी अपना नाम जुड़वाने के लिए उस डिनर में शामिल होने के लिए उसकी भी खासी चर्चा है, उसका लेकर इतनी पॉपुलैरिटी है कि प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क जाते हैं, वाशिंगटन जाते हैं, लोग हजार मील से दूर उनको देखने के लिए आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनको सुनने के लिए आते हैं। बहुत बड़ा ये आप देखो भारत के लिए कितनी बड़ी सम्मान बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना सम्मान मिल रहा है, हमारे देश को इतना सम्मान मिल रहा है। एक आखिरी सवाल here at DC, but this was truly an incredible experience to have thousands of Indian Americans be able to join and participate here at the White House. It was an incredible experience, and to see this many people from India coming together from the diaspora as well as immigrants here, it was incredible. So I was lucky to be part of it. Thank you. So you just heard the Prime Minister. How are you feeling after this? Yeah, I'm feeling better. Like we are mainly for the US-India relationship, and we Indian diaspora looking for that relationship be stronger compared to over here. So yeah, I'm very much excited to all the today's we have Congress presentation also. So we'll look for that one also. I am very excited to meet Modi ji, see Modi ji, and they both are Biden and Modi ji. What news are you with? Sorry. ANI. Okay. How Prime Minister Modi has just addressed and he mentioned about the Indian diaspora in the White House, in the lawns of the White House. What have you said? It's absolutely exciting, and we want to express our gratitude to the Prime Minister for his visit to continue to strengthen the ties between United States and India. So we're very grateful, and of course we're very excited. चलिए देखिए, इंडियन डायस्पोरा जिसकी ताकत जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताई। बिग आउट से मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये इंडियन डायस्पोरा है जो आज शायद विश्व पटल पर भारत को वहां लाकर खड़ा कर देता है जब अमेरिका को ये रियलाइज होता है कि मुझे ज्यादा जरूरत है भारत की बनिस्बत भारत को अमेरिका की। मैं ना कुछ अलग बात करना चाहता, आपकी इजाजत हो, इसी बारे में। देखो, पंतप्रधान मोदी जी तो महान है, पता है, बात कर चुके हैं, लेकिन हम तारीफ में इतने लगे रहते हैं ना कि आत्मनिर्भरता और आत्मसंतुष्टि, इसमें फासला है। आत्मसंतुष्टि विकास में बाधा डाल सकती है। तो हम लोग ऐसा प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए। मैं क्या कह रहा था, अभी आपने जो सब रिएक्शन दिखा रहे थे वो सब लोग अंग्रेजी में बात कर रहे थे। मेरे बच्चे हैं, हमारे जैसे लोगों के, यूएस सिटीजन के बच्चे हैं, वो इंडियन मूल के हैं, वो बहुत चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, लेकिन वो हिंदी नहीं समझते या बात करते, समझते हैं लेकिन बात नहीं करते, वो सब अंग्रेजी में बात करते हैं। अभी अगर मेरा बिजनेस है और मेरी एक कंपनी है जिसको साथ बिजनेस करना, एक चाइना कंपनी है इंडिया में, मैं बिजनेस दूंगा इंडिया को ना। मैं इंडियन हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि इंडिया में बिजनेस करना एकदम आसान है। अंग्रेजी में बात होती है, ट्रांसलेशन वांसलेशन का लफड़ा नहीं होता, 2 मिनट में काम हो जाता है। ट्रम्प साहब ने बुक किया था कि मोदी जी अंग्रेजी तो अच्छी बात करते हैं, तो जैसा गालिब ने कहा था, बात कुछ ऐसी है जो चुप हूं वरना की बात करनी नहीं आती। मेरा ये मानना है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं मोदी जी जैसे मान नेता को बोलूं, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलती है
अगर हम अमेरिका को बोल रहे हैं कि हमारे साथ भैया बिजनेस करो, क्योंकि हम from Nigeria was invited by the White House. I like what he do. If he's not doing well, Biden will not invite him. He's growing India. If you check in the United States, all the big Fortune 500 are headed by Indians, and they're doing very well. The Indian diaspora are making Indians in India proud. He's doing very well. Ma'am, just for our viewers, can you introduce yourself once? Your name and Princess Phyllis Mondogugwa, Nigerian American. I'm the chair of Virginian African Diaspora for African Diaspora Committee, and I was the co-national chair African Diaspora for Biden. Yes, thank you. Gurnur, come here. Gurnur, come here. so your name and how are you feeling after listening to the address of the My name is Sanjeet Singh. I'm from California, based in Silicon Valley. I'm representing the SIC community as well as the venture capital community here. And it was awesome to hear the speech. I think this will bolster further the technology side relationship. Last time I met Prime Minister Modi when he came to Silicon Valley in 2016. And it was good to see him again. And also we brought my son together as well. And I think he had a good time. What do you think? Yeah, I mean, I think it was it was a nice event overall. Like, I mean, when is the next time you can get to see Modi in person like that? Yeah. He has a couple of देखिए अभी भी इंडियन डायस्पोरा ये व्हाइट हाउस में ही मौजूद है, जो कि एक एक करके बाहर आता हुआ। अब बाहर कोई कह रहा है कि नहीं, आई एम प्राउड कि आज बहुत अच्छा लगा। और लोग तमाम अमेरिकी जगहों से आए हैं, लोग सिएटल से आए हैं, लोग सिलिकन वैली से आए हैं, सिख फेडरेशन से है, तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। तो तमाम जगहों से लोग आए हैं और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इंडियंस डायस्पोरा को व्हाइट हाउस लॉन्च तक अलाउ किया। वरना एक थोड़ी संख्या होती है या फिर एक सिर्फ मीडिया होता है। इतनी बड़ी संख्या में जो हमने देखा कि लॉन्च में जिसमें रिसेप्शन ये दी गई और वहाँ पर जो है इतनी बड़ी संख्या में इंडियंस को अलाउ किया गया था, इंडियंस मौजूद थे। ये जिस वक्त उस वहाँ रिसेप्शन हुआ और उसके बाद अभी हमने देखा अभी चल रही है दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत, दोनों के बीच की बातचीत। रवि गोड से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं कह रहा था to make the world a better place. Thank you so much. में होनी चाहिए। अगर आप कहोगे जब ट्रम्प साहब आए थे इंडिया तो उन्होंने क्यों हिंदी सीखी? अरे हम लोग स्मार्ट है। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन सिर्फ एक भाषा बोलते हैं, भारतीय लोग तो 3-3 भाषा बोलते हैं। तो अपना स्मार्टनेस है तो दिखाओ ना। अपना मोदी जी तो अंग्रेजी अच्छी बात करते हैं, गुजराती अच्छी बात करते हैं, मतलब वो तो उनकी मातृभाषा है। हिंदी तो इतनी बहुत प्यारी बात करते हैं। तो अब अंग्रेजी दिखाओ बिजनेस के लिए। मेरे ख्याल से ये बात कांग्रेस का सेशन स्पीच भी हिंदी में होना चाहिए था। ये स्पीच भी हिंदी में होना चाहिए था ताकि हम ये बात को पुष्टि दे, मजबूती दे कि क्यों अमेरिका इंडिया के साथ बिजनेस करता चाहता है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि कॉलोनियल मेंटालिटी है कि बाबा हमको अंग्रेजों ने पढ़ाई है तो इसलिए हम लोग करेंगे। 68 करोड़ इंडियंस भी हिंदी नहीं बात कर सकते। 1961 तक इंडिया की नेशनल लैंग्वेज भी अंग्रेजी थी। तो मतलब गौरव एक चीज है और प्रैक्टिकलिटी एक चीज है, उस पर भी थोड़ा फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूँ कि अब ये भोजन चल रहा है, सब मीठा मीठा चल रहा है, ना श्रीखंड है, ये जलेबी है, ये तो मैं इसमें थोड़ा खट्टा भी डाल दूं तो उसका मीठे का मजा और बढ़ जाता है। इसलिए मैंने ये बात उठाई। जाहिर सी बात है, मोस्ट वेलकम सर। राजलक्ष्मी जी, आपका इसी पर एक कमेंट और इसी को डायस्पोरा और इस ताकत के साथ जोड़ते हुए। नमस्ते। रवि गोडसे जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये एक जो गौरव की बात लगनी चाहिए हर किसी को, खास करके उन व्यक्तियों को जो यूएस में बसे हुए हैं, उनको भी एक ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आज भारत ये चोटी पर पहुंच गया है और उसका ये एक विशेष तरीका हो सकता है कि हम हिंदी में बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर भी। और जहाँ तक मैंने देखा है
पीएम मोदी जी काफी बार ऐसे हिंदी में बात कर चुके हैं और ये बात सही है कि अभी आगे भी अगर वो करें तो फिर और भी अच्छा होगा। लेकिन देखने वाली ये बात है कि आप देखिए कि ये जो दृश्य है कि जो पीएम मोदी ने भी बताया अपने वक्तव्य में, और दूसरे जो उधर आने जाने वाले जो लोग हैं, इधर के जो गेस्ट हैं, वो भी सब बता रहे हैं कि भले उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को, सारे राष्ट्रपतियों को आते जाते देखा है व्हाइट हाउस में, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी। तो ये मतलब उन्होंने, काफ़ी लोगों ने उनको, मोदी जी को रॉक स्टार बताया है, जो कि वो हैं, और उनकी बात में काफ़ी वजन है, और वो जो भी कहते हैं, और भले वो अंग्रेजी में हो, भले वो हिंदी में हो, वो बहुत ही सरल तरीके से कनेक्ट कर जाते हैं लोगों के साथ, और उसी का एक परिणाम है ये, जो उनका जो अभी आज डिप्लोमेटिक रिलेशन जो आप देख रहे हैं जो बाइडेन जी के साथ में, ये आज ये अगर ये सीमा पर अगर हम आज पहुंच गए हैं, तो उसकी ये एक बहुत ही मतलब ये इसका श्रेय बहुत बड़ी संख्या में मोदी जी को ही जाता है, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में हमारे मंत्री, हमारे डिप्लोमैट्स, ये सारे इतने कॉन्फिडेंस के साथ आज वो मीटिंग्स को कंडक्ट कर पा रहे हैं, जो डिसीजंस ले पा रहे हैं, ये सभी उनके नेतृत्व का ही एक परिणाम है। आप देख रहे होंगे कि जिन तरीके के डील्स हो रहे हैं, तो उसमें फायदा यूएस को तो है ही, लेकिन साथ साथ में इंडिया को भी फायदा भी है, और हमारा एक गौरवशाली बात है ये सारी जो अभी आज आप अगर देखें तो डिफेंस डील्स जो हो रही हैं, उसमें मालूम पड़ रहा है कि यूएस आज भारत को कितना बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, और कितनी, अभी आप अगर देखेंगे इवन मैरीटाइम इसमें भी अभी ये इन डील्स के बाद ऐसा भी होगा कि उनके जहाज हमारे पोर्ट्स में आकर वहाँ पे उनकी सर्विसिंग हो सकेगी, वहाँ पे उनको मेंटेनेंस हो पाएगा, वो वहाँ रुक पाएंगे, और इससे फ़ायदा भारत को भी होगा और यूएस को भी होगा, और क्वाड के तो हम मेंबर हैं ही, लेकिन ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इससे, और ये जो जीई के जो डील्स हैं, और ये इन सारी चीज़ों से हमारे जो आपसी ये जो संबंध है डिफेंस के मामले में खास तौर से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाला एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इसका, क्योंकि चीन को टक्कर देने के लिए मुझे लगता है ये दोनों सुपर पावर्स को, अभी आज इंडिया सुपर पावर से कम नहीं है, तो ये दोनों पावर्स को साथ आना बहुत ही जरूरी था, और जो बाइडेन ये बहुत, और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मैं विवेक जी एक बार आपके पास भी आना चाहूँगा, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि और अमेरिका ने दिखाया कि अमेरिका चीन के इस वक्त का रिलेशन, अमेरिका जानता है कि चीन के साथ आने वाले वक्त में अगर कहीं ना कहीं डील करना है तो भारत के साथ वो आना ही पड़ेगा, और रशिया के साथ पहले ही हम देख चुके हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्या स्थिति है। अब ऐसे में उसको मालूम है कि फ्यूचर अगर कहीं ना कहीं कुछ है वो इंडो यूएस रिलेशन ही। मैं बहुत जी बोलिए। अच्छा, मैं कह रहा था कि मैं पहले बात पूरी करना चाह रहा था कि क्लाइमेट क्राइसिस इज अ वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये अर्थ के लिए अपनी वैश्विक प्रॉब्लम है। इसको मैं चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो उनका एजेंडा में है, इसको और अच्छी तरीके से लें कि अमेरिका शुड पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली फॉर ब्रिंगिंग द टेम्परेचर टू द नॉर्मल लेवल। अब अभी ये बात हो रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग चाइना का ट्रेड अभी भी एटलीस्ट टचिंग 100 बिलियन है, जबकि अमेरिका से केवल हमारा जो इम्पोर्ट है करीब 20 बिलियन का है। हमको ये कमी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया। व्हाटएवर सेड एंड डन, हम लोग जब मिलते हैं चाइनीज, हमारे कई डॉक्टर्स फ्रेंड है, आई डोंट वांट टू बी, बट अगर ग्लोबली देखें, स्ट्रेटेजिकली देखें, तो चाइना इज द बिगेस्ट बिकॉज इट इज सपोर्टिंग पाकिस्तान, इट इज नॉट ए फ्रेंड फॉर अस। ये बात अलग है, तो हमको अमेरिका के साथ संबंध वही बनाने चाहिए जो 20 साल पहले हमारे रशिया के साथ थे। वी कैनॉट काउंटर रशिया एट कॉस्ट ऑफ यूएस, बट वी हैव टू हैव ए बैलेंस। ऐसा बैलेंस करें कि हम दोनों के साथ दोस्ती करें, जिससे कि जो ड्रैगन वाला प्रॉब्लम है वो ना हो, क्योंकि इस समय जो हम सोच रहे, कोविड भी आया था तो देयर वाज अ बिग डाउट एंड देयर वाज बिग सस्पिशन एंड कंफर्मेशन आल्सो, इट एक्चुअली इमर्ज्ड फ्रॉम बायो वॉर या बायो वॉरफेयर था, उनकी प्लानिंग थी, सो मेनी लाइव्स वर। एक बार हम सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि द्विपक्षीय शुरू होने वाली, उससे पहले 1-on-1 जो मीट है वो देख लेते हैं। मुद्दों पर
दोनों नेता आपस में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है वो एक संयुक्त सारा बयान में हमारे सामने होगा। व्हाइट हाउस के हो गया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था। जिस वक्त मैं एक्सपेक्ट हुआ करता था, जब मैं पहली बार आया था व्हाइट हाउस, उस वक्त मैंने देखा था, आया था। और उससे पहले स्टेट विजिट, इससे पहले जो है मैंने जब 2016 में भी जो विजिट हुआ था, और उसके बाद कई बार व्हाइट हाउस आना लगा रहा है। लेकिन आज जो है, जब हम बैठेंगे जो बाइडेन के साथ, जब मेरी बैठक शुरू होगी, तो भारत और अमेरिका के वो रिश्ते जो कि एक अलग ही इतिहास पर, एक अलग ही पटल पर हैं, उनको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको और कैसे प्रगाढ़ किया जाए, उसकी चर्चा होगी। ये देखिए स्पीच एक बहुत ही, ये देखिए व्हाइट हाउस, ये पावर कॉरिडोर कह सकते हैं हम, ये व्हाइट हाउस कॉरिडोर में जो बाइडेन और पीएम मोदी, दो दुनिया के, हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ी ताकतें, दो दुनिया के सबसे बड़े लीडर वॉक करते हुए और टॉक करते हुए, वॉक द टॉक। तो इस वक्त दो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर लीडर्स उस पावर कॉरिडोर में मौजूद थे, व्हाइट हाउस में मौजूद थे। प्रधानमंत्री का जहां स्वागत किया गया स्टेट गेस्ट के तौर पर, और 10 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आ सकता है लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद। फिर उसके बाद पीएम ने कैपिटल हिल, यानी हमने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट को संबोधित भी करना है। यूएस कांग्रेस का जॉइंट सेशन है, जिसका जिक्र भी पीएम ने किया कि यूएस कांग्रेस का जॉइंट सेशन है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मुझे उसमें भी, अब उसमें देखना होगा कि भारत किस तरीके से अपनी बात रखता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मंच होगा विश्व को बताने के लिए कि भारत की इस वक्त स्थिति क्या है, भारत कैसे अपने हित में खड़ा होना जानता है, भारत कैसे जो है अपने हितों की रक्षा करना, भले वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, तमाम अगर किसी की बुरी नज़र है तो उसका जवाब देना भी जानता है, लेकिन असल में वो शांति चाहता है। पहल वो पहले कभी करता नहीं है। तमाम चीज़ें जिसको देख करके एड्रेस किया जा सकता है। बहुत बड़ा मैसेज होगा जिस वक्त मैसेज पीएम की तरफ से दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी आज जिस वक्त कांग्रेस को संबोधित करेंगे। देखिए इस वक्त ये जो है 1-on-1 की तस्वीर आ रही है। और राजलक्ष्मी जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यूएस कांग्रेस में? यूएस कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोधी हैं, तो उनके कुछ सवाल तो होंगे। खासकर ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है, उसमें वो चाहते हैं कि भारत कोई टिप्पणी करे, तो उनकी तरफ से वो एक दबाव हो सकता है। और उनके ऐसे भी कुछ सवाल हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जो क्लाइमेट एक्शन, इस पर भी थोड़ा सा जोर होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि अभी आपने अगर देखा है तो ये इस साल को यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो घोषित किया है, उसमें भी पीएम मोदी जी का बहुत ही योगदान था। और उन्होंने ये जो मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने उसको बहुत सोच समझ के इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि उसको वो बहुत ही एक इको फ्रेंडली, बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली, उसको आप कहीं पर भी उन मिलेट्स को आप मतलब वो कहीं पर भी आप उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनको बहुत कम पानी की जरूरत है। ये सब जो मिलेट्स एक एग्रीकल्चरली वो एक बहुत ही बड़ा एक रिफॉर्म हो सकता है। और पूरे विश्व में ये जो एक फूड और ये जो स्कैर्सिटी हो रही है, खास करके प्रेसिडेंट बाइडेन ने वही कहा था कि अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद थोड़ी सी जो पावर्टी और जो फूड स्कैर्सिटी की एक स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको भारत और अमेरिका दोनों मिलकर उसको कुछ ना कुछ उसका उपाय कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि खासकर ये कृषि उत्पादन के विषय में मिलेट्स का बहुत ही बड़ा योगदान होगा, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है, और उसके बावजूद ये ऑर्गेनिकली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। उसमें केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब जो है तो उसका बहुत ही बड़ा फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ
उसमें योगदान होगा, उसमें उसका भी कुछ ना कुछ जिक्र होगी इस यूएस कांग्रेस के इसमें। जाहिर सी बात है, एक रोड मैप दिखेगा, democracy- एक वे अहेड होगा, एक रोड मैप होगा, एक नक्शा होगा, एक मैप होगा। मैं एक बार एक तस्वीर पहले दिखाना चाहता हूं, फिर जनरल द्विवेदी मैं आपके पास भी आना चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं। देखिए 1994 में जिस वक्त प्रचारक हुआ करते थे और उस वक्त वो आए थे यहाँ पर नरेंद्र मोदी, देखिए व्हाइट हाउस के बाहर उन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी, और ये आज की तस्वीर है जब व्हाइट हाउस ने उन्हें होस्ट किया। उस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर की तस्वीर थी जब प्रचारक हुआ करते थे, एजुकेशनल टूर पे जाया करते थे और प्रधानमंत्री घूमा करते थे, और प्रधानमंत्री ने उस वक्त जब पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री, उस वक्त वो आए थे अमेरिका के विजिट पर, तब उन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर ये तस्वीर खिंचाई थी। तब किसे मालूम था कि आज यही व्हाइट हाउस इस तरीके से, ये पावरफुल व्हाइट हाउस, पावरफुल इतना बड़ा पार का कॉरिडोर जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बैठता है, वो आज खड़ा होकर के होस्ट कर रहा होगा उसी लड़के को जो 1994 में यहाँ पहुंचा था, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। जी द्विवेदी साहब, ये दो तस्वीर बहुत कुछ कहती है। देखिए, जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं बिल्कुल अहम है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो देश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर विजिट कर रहे हैं, स्टेट विजिट है। वो जो तस्वीर थी वो पहले वो उनकी इंडिविजुअल तस्वीर थी। तो हमें ये समझना है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो उनको आदर स्वागत मिल रहा है, वो क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं मिल रहा है, वो एक ऐसे देश के नेता हैं। और आज भारत का कद बहुत बड़ा है। अभी देखें कि पिछले तकरीबन 20 साल में भारत ने बहुत तरक्की की। हमारा आज हम एक बहुत ताकतवर देशों में हमारी गिनती होती है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पाथ जिसको बोलते हैं CNP, वो बड़ा है। आज हम 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक देश है, एक स्टेबिलिटी है हमारी साउथ एशिया में ही नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक एक स्टेबिलिटी हमारी है। और साथ ही साथ तकरीबन हमारे 500 मिलियन 500 मिलियन हमारी वर्क फोर्स है, हमारी टेक्नोलॉजी है। तो ये सब क्या दर्शाती है? हमारी आर्म फोर्सेस है, वो बहुत काबिल है, हमारी नेवी है, वो इंडो पैसिफिक में उसका एक बहुत अच्छा एक स्थान है और जिसकी कदर अमेरिका करता है, क्योंकि अमेरिका को इंडो पैसिफिक में बहुत ही उनका एक स्टेक्स, बहुत हाई स्टेक्स है, क्योंकि जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंडो पैसिफिक के बीच में गुजरती हैं, जिसमें भारत की जो नौसेना है उसका एक बहुत ही अहम योगदान है। तो मैं ये बताऊंगा कि जो आज आदर स्वागत गौरव के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री खड़े हैं, वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इंडिविजुअल तौर पर नहीं है वहां पर। और ये दोनों देशों के बीच में जो अभी स्टेट विजिट हो रहा है, ये दोनों देशों के बीच में एक सामरिक दृष्टि से देखा जाता है कि दो ताकतवर देश हैं। अमेरिका एक बहुत ही ताकतवर, दुनिया का ताकतवर देश है, भारत एक उभरता हुआ एक डेमोक्रेटिक देश है, और भारत एक ऐसा देश है जिसको चीन को टक्कर दे सकता है। और अमेरिका में इस समय चीन का और रशिया के नजरिए से उनकी काफी चिंता है। और ये भारत ही एक ऐसा देश है जो कि इंडो पैसिफिक में, एशिया पैसिफिक में एक बहुत मजबूत तौर पर एक उभरता हुआ देश है, और जिसके हित में, दोनों के हित में है कि अमेरिका के हित में और भारत के हित में कि ये रिश्ते मजबूत हों। और ये स्टेट विजिट भी जो है ये भी एक बहुत अहम विजिट है, क्योंकि ये सिर्फ तीसरे भारतीय हैं PM मोदी साहब। इससे पहले प्रेसिडेंट राधाकृष्णन थे, 1963 में उनको यही गौरव प्राप्त हुआ। उसके बाद मनमोहन सिंह साहब थे, 2009 में उनको स्टेट विजिट मिला, और अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं जिनको ये गौरव मिला है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट बाइडेन के जो अभी 2.5 साल के टेन्यूर में उन्होंने सिर्फ 3 ऐसे विजिट दिए हैं, प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, और प्रेसिडेंट मोदी जो है तीसरे ऐसे नेता हैं जिनको ये गौरव प्राप्त हुआ है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि जो हमें इज्जत मिल रही है, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब को जो मेहनवाजी मिल रही है, वो इसलिए है कि भारत का एक बहुत ही अहम भूमिका है इस समय दुनिया के अंदर। और भारत की जो ओर अमेरिका की नहीं
पूरी दुनिया की नजरें हैं कि हम बहुत ही एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। जाहिर सी बात है। मैं राजलक्ष्मी जी आऊँगा आपके पास में, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद मैं जो है आपके पास आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार जैसे हम देख रहे हैं कि ये मेगा कवरेज जारी है, क्योंकि कुछ ही देर बाद यूथ कांग्रेस में एड्रेस होना, आप सबकी नजरें उस पर भी टिकी होंगी।